آمن السفہاء، منافق کہنے لگے کیا ہم ایسے ایمان قبول کر لیں جیسے السفہاء ان بے وقوف لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اب منافقین نے صحابہ کو کیا کہا؟ یہ بے وقوف ہے، تو جو کام بے وقوف کرے، ہم بڑے عقل مند، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہم بڑے دانا لوگ ہیں، ہم بڑے ذہین لوگ ہیں، ہم بڑے فتین لوگ ہیں، ہم بڑے دانشور ہیں، ہم یہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور کریں، یہاں دو تین نکات عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ان کو ذہن میں رکھ کے جائیے۔ منافقین نے صحابہ کو کیا کہا؟ بولیے بس، بے وقوف کیا کہا؟ اب ان کا جواب کس نے دیا؟ صحابہ نے نہیں دیا، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے نہیں دیا، جواب رب کائنات نے خود دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ خبردار، میرے محبوب کے دیوانوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہو، میرے محبوب کے غلاموں کے بارے میں یہ زبان درازی کرتے ہو، میرے محبوب کے غلاموں کے بارے میں ایسی حرکت کرتے ہو، خبردار، الا انہم ہم السفہاء، فرمایا وہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تم لوگ ہو۔ اب یہ کس نے کہا؟ بولیے بس، کس نے کہا؟ جو صحابہ کو برا کہے، جو صحابہ کو بے وقوف کہے، رب کائنات فرماتا ہے وہ نہیں، کہنے والا خود احمق ہے، کہنے والا خود بے وقوف ہے، کہنے والا خود پاگل ہے، اس لیے کہ وہ تو مصطفیٰ کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ یہ تو بات عقیدے کے حوالے سے، لیکن میں ایک محبت کی بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ میں بات سمجھا لوں گا۔ منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، بھئی کیوں کہا؟ کیا ان کو کوئی بے وقوفی کی نشانی نظر آئی تھی؟ کیا کوئی بے وقوفی کی علامت تھی؟ آئیے ذرا غور کریں، اگر یہ بات میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سنیے، منافق اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے، ان کو صحابہ کرام میں بے وقوفی کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں نظر آتی تھی۔ کون سی؟ سنیے، میں پہلے مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہاں میں یا آپ میں سے کوئی آدمی باہر کھڑا ہو اور زمین پہ تھوکنے لگے، آگے سے کوئی اور آدمی ہے فوراً آگے ہاتھ کرے اور تھوک لے کر منہ پہ ملنے لگ جائے، اب اس بندے کو کیا کہو گے؟ بولیے، بے وقوف کہو۔ اگر میں کولی کرنے لگتا ہوں، یا میں سے کوئی کولی کرنے لگتا ہے، میں فوراً آگے بڑھتا ہوں، آپ کا کولی والا پانی لے کے چہرے پہ ملنے لگ جاتا ہوں، سینے پہ ملنے لگ جاتا ہوں، کپڑوں پہ ملتا ہوں، آپ مجھے کیا کہو گے؟ یار یہ تو بے وقوف ہے، کبھی منہ سے نکلا ہوا تھوک بھی چہرے پہ ملا گیا، کبھی کولی کا پانی بھی چہرے پہ ملا جاتا ہے۔ سنیے، اب یہ بظاہر علامت ہے بے وقوفی کی، بظاہر علامت نظر آتی ہے بے وقوفی کی، نشانی بنتی تھی، لیکن جب منافقین نے دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم کا لعاب، بات نہیں سمجھ آئی، میرے محبوب کریم کا لعاب نکلتا، صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی کولی کا پانی آپ کے دہنے مقدس سے باہر نکلتا ہے، صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، یہ بظاہر بے وقوفی کی علامت تھی۔ ان کو دیکھ کے منافق کہنے لگے یہ بے وقوف لگتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا اوے احمقو، یہ بے وقوف نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، بے وقوف تو تم نظر آتے ہو جو مصطفیٰ کا تبرک نہیں لیتے ہو، بے وقوف تو تم نظر آتے ہو۔ اب آئیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ذرا ذہن میں رکھیے، ذرا غور کیجئے، یہ بات اگر کوئی آدمی اپنی تھوکتا ہے، منہ سے تھوک نکالتا ہے، چہرے پہ ملتا ہے، یہ بے وقوفی تب ہوگی جب میری تھوک ہوگی، آپ کی تھوک ہوگی، لیکن اگر سامنے آمنہ کا لال کھڑا ہے، اگر میرے منہ کا پانی ہو آپ اپنے منہ پہ لگا لیں، آپ کے منہ کا پانی میں اپنے منہ پہ لگاؤں، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے، کیونکہ یہاں میں اور آپ کھڑے ہیں، وہاں میرا مصطفیٰ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب اللہ کریم نے کہا، فرمایا وہ بے وقوف ہے۔ صحابہ کو کیا کہا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کے تبرکات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کا لعاب مبارک تبرک ہے، آپ کا کولی کا پانی تبرک ہے۔ آج دنیا تبرک سے بڑا چڑھتی ہے، کہتے ہیں یہ تبرکات کی حفاظت کیسے کرتے ہو، یہ تبرکات کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا قرآن نے فیصلہ دے دیا، جو تبرک کی حفاظت کرے اللہ اسے مومن کہتا ہے، اور جو تبرک کی حفاظت نہ کرے اللہ اسے احمق کہہ رہا ہے۔ اچھا اب یہ ادھر تو علامت نظر آ گئی، ادھر تو نشانی پتہ چل گئی کہ یہ بے وقوفی کی بظاہر علامت تھی۔ وہ اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے، اپنے آپ کو دانا سمجھنے والے، اپنے آپ کو ذیشان سمجھنے والے کہتے ہیں معاذ اللہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اللہ نے جواب میں کہہ دیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ بے وقوف ہے۔ میں نے علامت تصورات میں کیا مولا چلو ادھر تو انہوں نے علامت سمجھی تھی،
اب ان मुनाफिकीन में बेवकूफी की क्या अलामत है? आखिर इनमें भी तो कोई अलामत होगी, अल्लाह इनको बेवकूफ कहता है। आइए सुनिए, मैं कुरान से अर्ज करना चाहता हूं ताकि बात को समझा सकूं। अल्लाह ने उनको बेवकूफ क्यों कहा, अल्लाह ने उनको पागल क्यों कहा? एक जगह पर नहीं, कुरान में कई मकामात पर मौजूद है। आइए पहले आयत का मफहूम समझाता हूं, फिर बात समझ में आएगी। मेरे और आपके प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम, आप बैठे हैं सहाबा किराम में, गुफ्तगू करते करते दोपहर का टाइम हो गया। मेरे और आपके प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त घर में आराम करने के लिए तशरीफ ले गए। तो दोपहर को जो आराम किया जाता है, इसको मेरे महबूब की जबान में कैलूला कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलूला करना, दोपहर को आराम करना। आप घर में तशरीफ ले गए, कबीला गतफान के कोई नंबरदार सरदार चौधरी साहब आ गए हुजूर से मुलाकात के लिए। पूछा अल्लाह के प्यारे नबी कहाँ हैं? सहाबा किराम फरमाते हैं कि आमना के लाल अभी घर में तशरीफ ले गए आराम करने के लिए। अब वो कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं, हम बड़े बड़े चौधरी हैं, हम बड़े बड़े सरदार हैं, हम बड़े बड़े नंबरदार हैं, इतना सफर करके आए हुजूर से मिलने के लिए आए हैं। अब जरा गौर करें, सरदार चौधरी नंबरदार अपने आप को कहने वाले क्या कहने लगे? हम हुजूर से मिलने के लिए आए हैं, तो कौन को बुलाओ? तो उन्होंने अल्फाज क्या कहे? मुफस्सिरीन फरमाते हैं उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारक से बाहर खड़े हो क्या कहा? उखरुज इलैना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे या मोहम्मद बाहर तशरीफ लाइए। अब इन्होंने ये जुमला कहा, अल्लाह ने फौरन एक उतारी, फरमाया इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याकिलून। फरमाया जिन्होंने मेरे मुस्तफा को आवाज दी ये बेअकल है, जिन्होंने मेरे महबूब को बुलाया ये कौन है? ला याकिल, इसमें अकल नहीं है, ये पागल है, बेवकूफ है। अब जरा गौर करें, मैंने जब कुरान की आयत पे गौर किया तो अर्ज किया मौला ये पागल क्यों है, ये बेवकूफ क्यों है? आइए मैं पहले मिसाल देता हूं समझाने के लिए। आप किसी दोस्त को मिलने के लिए उसके घर जाए ना, आप उसके दरवाजे पे जाएं तो बुलाने के अकलन आदतन तीन तरीके हैं। नंबर एक, या तो दरवाजे पे खड़े हो के आप आवाज देंगे खान साहब बाहर आ जाओ, चौधरी साहब बाहर आ जाओ, यही तरीका होगा। नंबर दो, या आप दरवाजे पे दस्तक देंगे, भाई बाहर तशरीफ लाइए मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। या आप क्या करेंगे? किसी छोटे बच्चे को अंदर भेजेंगे, भाई जाओ फलां बंदे को बुला के लो मैं मिलने के लिए आया हूँ। ये तीन तरीके हैं आदतन बुलाने के लिए। अब जरा गौर करें, कोई आदमी अपनी दोस्त की मुलाकात के लिए जाए, 1 घंटा दरवाजे पे खड़ा रहे, आवाज भी ना दे, दरवाजे पे दस्तक भी ना दे, अंदर बंदा भी ना भेजे, वापस आ जाए, 2 दिन के बाद मुलाकात हो, क्या यार तू अजीब आदमी है, मैं कल तेरी मुलाकात के लिए आया था, 1 घंटा तेरे दरवाजे पे खड़ा रहा और तू बाहर ही नहीं निकला। वो कहेगा भाई मुझे तो मालूम ही नहीं। अच्छा आप आए थे तो क्या आपने दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दी थी? कहते नहीं आवाज तो नहीं दी थी। कहा अच्छा दरवाजे पे दस्तक दी थी? कहते दस्तक भी नहीं दी। कहा किसी बच्चे को अंदर भेज देते मुझे बुला लेते? कहने लगा बच्चा भी नहीं भेजा। वो कहेगा अल्लाह के बंदे जब मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे इल्म ही नहीं है, तू मेरे दरवाजे पे आया था या नहीं आया था, मुझे क्या पता दरवाजे पे कौन है? तो अगर मुझे पता चलता तो मैं बाहर आता, जब मुझे पता ही नहीं चला मैं बाहर कैसे आता? तो मतलब क्या निकला? आवाज दी जाती है ताकि घर वाले को इल्म नहीं था इल्म आ जाए, पता नहीं था पता चल जाए। दरवाजे पे दस्तक क्यों दी जाती है? इसलिए ताकि घर वाले को पता चल जाए। अंदर बच्चा क्यों भेजा जाता है? ताकि घर वाले को पता चल जाए। अब गतफान के सरदार आए, उन्होंने आवाज दी उखरुज इलैना या मोहम्मद। क्यों? उनका अकीदा ये था अगर आवाज नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा। फरमाया जो ये अकीदा लेके आया है आवाज नहीं देंगे पता नहीं चलेगा, ये बेवकूफ नहीं तो और क्या है मुझे बताओ। बात मेरे ख्याल नहीं समझ आई, मुश्किल हो गई। कहा अगर ये बेवकूफ नहीं तो और क्या है? अर्ज की मौला क्यों बेवकूफ? फरमाया यहाँ आवाज देने की जरूरत नहीं, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम। फरमाया आवाज देने की जरूरत नहीं है, दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत नहीं है, और बच्चे को भी अंदर भेजने की जरूरत नहीं। क्यों? आवाज दी जाती है ताकि घर वाले को पता चल जाए, दस्तक दी जाती है ताकि घर वाले को पता चल जाए, बच्चा भेजा जाता है ताकि अंदर वाले को पता चल जाए, उसे पता नहीं बताने के लिए भेजा जाता है। आमना के लाल के बारे में यह अकीदा लेके मत आना, इसलिए तुम घर से बाद में चलते हो। मेरे मुस्तफा को पहले पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। फरमाया वहां आवाज दी जाती है इसलिए कि घर वाले को इल्म नहीं ताकि पता चल जाए, दस्तक दी जाती है ताकि घर वाले को पता चल जाए। यहां अगर ये अकीदा लेके आए हो ना,
आवाज देंगे तो पता चलेगा, दस्तक देंगे तो पता चलेगा, बच्चा अंदर जाएगा तो पता चलेगा। फरमाया ला याकिलून, इससे बड़ा पागल कौन होगा? बेवकूफ यही है, इसलिए कि घर से बाद में चलते हैं, मुस्तफा को पहले पता होता है। अब कुरान ने कहा ये बेवकूफ है, क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन का भी अकीदा यही था, मुनाफिकीन का भी अकीदा यही था कि इनको दीवार के पीछे का पता नहीं चलता। फरमाया जो ये अकीदा रखता है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, फरमाया ये बेवकूफ नहीं तो और कौन है? अक्लमंद तो वो होगा जिसका अकीदा ये होना चाहिए, मैं घर से बाद में चलता हूं, मुस्तफा को पहले पता होता। अब आइए इसकी तौदी में एक हदीस भी पढ़ देता हूं ताकि बात पूरी हो जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको भूख लगी थी। इब्तदान इस्लाम के हालात बड़े तंगी के थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अब चूंकि खुददारी भी एक चीज होती है कि बंदा भूखा भी हो तो किसी को क्या यार मुझे भूख खाना चाहिए, तो बड़ा अजीब सा लगता है, खुददारी भी कुछ है होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया खाने के लिए तो कोई चीज नहीं है, तो क्या करूं? उन्होंने सोचा कि मैं किसी दोस्त को मिलने के लिए जाता हूं तो कोई तो मुझे सुलो मारेगा ना, भाई खाना खा लो, तो मैं कह दूंगा मुझे भूख लगी। फरमाते मैं चला गया सरकार सिद्दीक अकबर के पास। इत्तेफाक ऐसा हुआ खाने का टाइम नहीं था, उन्होंने मुझसे खाना पूछा ही नहीं। अब मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी, मैं कह देता भी मुझे भूख लगी है। फरमाते मैं थोड़ी देर बैठा रहा, उन्होंने ना पूछा। मैंने कहा अच्छा कहीं और चलते हैं। मैंने सोचा फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के पास चलते हैं। जब सरकार फारूक आजम के पास गए ना तो इत्तेफाक ऐसा, उन्होंने भी ना पूछा भी खाना खाना है आपने। अब कहते मैंने कहा यार सिद्दीक अकबर के पास भी गए, उन्होंने भी नहीं पूछा, फारूक आजम ने भी नहीं पूछा, अब क्या करें? दिल में ख्याल आया दरे मुस्तफा पे चलते हैं, हुजूर की बारगाह में चलते हैं, दरे मुस्तफा पे जाते हैं, सुनिए अकीदा बनाइए। ये इमाम अल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा का अकीदा है। फरमाते मैं दरे मुस्तफा पे गया, जाके मैंने सलाम अर्ज किया, मेरे आका ने मुझे सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देने के बाद पहला जुमला ये कहा, अबू हुरैरा भूख लगी है कुछ पेश करूं? अबू हुरैरा भूख लगी है कुछ पेश करूं? फरमाते मैंने बताया नहीं है, मैंने अर्ज नहीं किया, बस मैंने तो सलाम ही किया, तो इसलिए मैंने अकीदा अर्ज किया था मोमिन चलता बाद में है, मेरा मुस्तफा पहले जानता है। आइए एक और हदीस भी अर्ज करते चलूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। मिशकात तमाम मदारस में ये किताब पढ़ाई जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि माले गनीमत पड़ा हुआ था, मेरे और आपके प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा रात को इसका जरा ख्याल करना। फरमाते मैंने रात को ख्याल किया, चोर आ गया। जब चोर आया ना मुझे पता चल गया, मैंने चोर को यहाँ से घुटने से पकड़ लिया। चोर मुझे कहने लगा बाबा जी जरा मेहरबानी करें मुझे छोड़ दे, मैं गरीब आदमी हूँ, घर में कुछ नहीं था, मजबूरन चोरी किया, मेहरबानी करें छोड़ दे। फरमाते मैं भी नरम दिल था, उसने मिन्नत समाजत की, मैंने छोड़ दी। फरमाते मैं सुबह दरे मुस्तफा पे हाजिर होता हूँ, अभी रात का वाकया बयान नहीं किया, मैंने हुजूर से अर्ज नहीं किया। मेरे आका पहले फरमाते हैं अबू हुरैरा बताओ रात वाले बेली का क्या बना, जरा रात वाले बेली का क्या बना? हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने सारा माजरा बयान कर दिया। अर्ज करते मैंने उससे वादा लिया था कि तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा, उसने मेरे साथ वादा किया था आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया। मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा वो झूठ बोल के गया, आज फिर आएगा, आज फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते पहले तो मुझे पता नहीं था आएगा या नहीं आएगा, अब मेरे महबूब की जबान से निकला था, अब तो आना ही आना था। मैं सारी रात ताड़ में था कि कब आएगा मैं पकड़ लूं। काफी रात गुजर गई, फिर आ गया, मैंने यहाँ से पकड़ ली, फिर बड़ी मिन्नत समाजत करने लग गया। बाबा जी मैं बड़ा गरीब था, बच्चे भूखे मर रहे थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, ये था वो था, मैंने बड़ी मिन्नतें की। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करे आप मेरे साथ वादा करें, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने वादा किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने छोड़ दिया, फिर मैं सुबह दरे मुस्तफा पे हाजिर होता हूँ। सरकार फरमाते अबू हुरैरा बताइए रात वाले चोर का क्या बना? लोग तो कहते हैं बताना पड़ता है, ये तो पूछो अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हुजूर के सामने बैठ के दीन सीखा है, जिन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त मेरे मुस्तफा से इल्म सीखा है। सुनिए दूसरी रात फिर मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा झूठ बोल के गया, आज फिर आएगा। तीसरी रात फिर आया। अब मैंने कहा मैं इसको नहीं छोड़ता यार, रात मेरे साथ दा लगा के जाता है, अब मैं पक्का हो गया, मैंने कहा मैं नहीं छोड़ता। उसने एक बड़ी प्यारी बात की, कहने लगा अबू हुरैरा की नसीहत करता हूँ ये पढ़ लेना, फिर आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। कहा क्या? कहने लगे रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले। क्या पढ़ ले? आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाना, मैं नहीं आऊंगा। तो कहते हैं मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, बात नसीहत वाली थी, मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह दरे मुस्तफा पे हाजिर हुआ। मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा बताइए रात वाले बेली का क्या बना? मैंने पूरी तफसील बता दी। मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा था झूठा लेकिन बात सच्ची करके गया। था क्या? झूठा लेकिन बात सच्ची करके गया है। फरमाया अबू हुरैरा सुन लो
یہ چور نہیں تھا، یہ شیطان تھا، چور بن کے آتا تھا۔ اب مجھے بتائیے میرے آقا کو کون بتا رہا تھا؟ آج دنیا کہتی ہے بتانا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں پیارے ابو ہریرہ سے پوچھو، بتانے کی ضرورت نہیں، ارادہ بعد میں ہوتا ہے، مصطفیٰ پہلے جان رہا ہوتا ہے، خیال بعد میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم پہلے جانتے ہیں کہ میرے غلام کے دل میں کیا ارادہ ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجرے سے باہر کھڑا ہو کے آواز دے، لا یعقلون، یہ بے عقل ہے، یہ بے وقوف